Hello students, welcome back to English class. So after studying about preposition, what is preposition and what are the different types of preposition, now today we are going to solve some questions that are given on page number 131 and question number C. Okay, तो यहाँ पर कुछ पैसेज दिए हुए हैं, कुछ पैराग्राफ्स दिए गए हैं, उनमें जो ब्लैंक्स हैं उन्हें हमें suitable preposition से fill करना है. Okay. So take a pencil in your hand and start reading and solving with me. The question, that is question C. Fill in the blanks in the following paragraphs with suitable prepositions. Choose your answers from the box provided along with. You can use the given prepositions more than once. So here some paragraphs are given and in the box the options are given. We have to select the correct prepositions and we have to complete the paragraph. Okay. So let's start. The first is a story about a crow and a fox. Okay, so let's see what happens in the story. Okay, a crow was sitting dash a tree. So here the options that are given are on, off, under, to, up. अब यहाँ से क्या, यहाँ पर क्या आएगा? A crow was sitting dash a tree. It means crow कहाँ बैठा था? पेड़ के ऊपर बैठा था. तो यहाँ क्या आएगा? On. A crow was sitting on a tree. It had piece dash cheese in its beak. उसके पास क्या था? It was having a piece of cheese in its beak. उसकी चोंच में एक चीज का पीस था. तो यहाँ क्या आएगा? It had a piece of cheese in its beak. A fox came dashed a tree. फिर वहाँ एक fox आया और कहाँ आया? It came under a tree, है ना? A fox came under the tree. जो फॉक्स है वो पेड़ के नीचे आके खड़ा हो गया. He saw the crow. उसने क्रो को देखा. He wanted dash get the piece dash cheese. अब उस फॉक्स को जो है वो पीस चाहिए था चीज का. ओके, सो यहाँ क्या आएगा? He wanted to get the piece of cheese. Okay, next he asked the crow dash sing. So he thought of a plan and he asked the crow to sing. Okay, उसने क्रो से कहा कि तुम एक गाना गाओ. तो यहाँ क्या आएगा? To. The crow opened its beak dash sing. तो क्रो ने क्या किया? अपनी चोंच खोली गाना गाने के लिए. तो यहाँ क्या आएगा? कौन सा preposition आएगा? The crow opened its beak to sing. मतलब गाने के लिए उसने अपनी चोंच खोली. It said caw caw. The piece डैश चीज फेल डाउन. और जब क्रो ने गाना शुरू किया, द पीस डैश चीज फेल डाउन. द पीस ऑफ चीज फेल डाउन मीन्स जो चीज का टुकड़ा था वो नीचे गिर गया. द फॉक्स पिक्ड इट अप एंड रैन अवे. ओके, द क्रो वॉज फुलिश. तो जो फॉक्स है उसने वो चीज का टुकड़ा उठाया और भाग गया. और इस तरह से जो क्रो है वो बेवकूफ बन गया. वो बेवकूफ था इसीलिए वो बेवकूफ बन गया. ही वॉज फुलिश. ओके, नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ, इट इज अबाउट जाइंट पांडास. सो स्टूडेंट, इफ यू रिमेंबर योर फर्स्ट चैप्टर वॉज बेस्ड ऑन जाइंट पांडास. सो दिस इज द पैराग्राफ अगेन टेकन अबाउट दैम. Giant pandas live dash bamboo forest dash the mountains dash western China. Okay, so यहाँ क्या आएगा? Giant pandas live in bamboo forest in the mountains of western China. Okay, तो giant pandas कहाँ रहते हैं? बैम्बू फॉरेस्ट में, जो कि पहाड़ों में है, जो वेस्टर्न चाइना में, मतलब वेस्टर्न चाइना के जो पहाड़ हैं वहाँ जो घने जंगल हैं वहाँ giant pandas पाए जाते हैं. These forests are very thick and the pandas remain hidden. और ये जो फॉरेस्ट है ये बहुत थिक है. थिक मीन्स घने हैं और पांडास जो है वो वहाँ छुप कर रहते हैं. Hidden dash them, hidden in them. So it is difficult dash scientists. So it is difficult for scientists dash learn more about them, to learn more about them. तो ये जो पांडास है उन जंगलों में छुप कर रहते हैं, तो इसीलिए ये साइंटिस्ट के लिए बहुत मुश्किल काम हो जाता है उनके ऊपर कोई भी रिसर्च करना. ओके, उनके बारे में स्टडी करना. ओके, सो दीज आर द आंसर्स ऑफ पैसेज नंबर बी. नाउ द नेक्स्ट वन,
It was dash 1903 that the first motor driven plane took off dash its first flight. So as you all know, you have studied it earlier also, that the first motor driven plane took its flight in 1903. तो यहाँ क्या आएगा? It was in 1903 that the first motor driven plane took off dash its first flight, for its first flight. Okay, it was the Wright brothers dash America. So who invented aeroplane? Who first started the motor driven plane? राइट ब्रदर्स, उनका नाम था राइट ब्रदर्स, जो अमेरिका से थे. हु वर्कड हार्ड डैश मेक एन एरोप्लेन. और इन राइट ब्रदर्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत की एरोप्लेन बनाने के लिए. तो यहाँ क्या आएगा? हु वर्कड हार्ड टू मेक एन एरोप्लेन. Orville Wright took the first flight dash 11 December. So first flight was taken by Orville Wright to on 11th December. तो यहाँ क्या आएगा? ऑन, बिकॉज जहाँ पर हमें डेट मेंशन करनी होती है, डे मेंशन करना होता है, वहाँ हम ऑन यूज करते हैं. सो यहाँ हमने क्या यूज किया है? ऑन. ओके, सो दिस वर द आंसर्स ऑफ सी. नाउ डी. Dash olden times pandas were found everywhere. So again this is paragraph about pandas. यहाँ क्या आएगा? Dash old times pandas were found everywhere. In old times pandas were found everywhere. Dash China. In China, but dash eastern China the bamboo forest have been cut down. But in western China. तो यहाँ क्या लिखा है कि पुराने टाइम में, इन ओल्ड टाइम्स, पांडास वर फाउंड एवरीवेयर. पांडास जो है वो हर जगह पाए जाते थे, मतलब जिस तरह से हम और एनिमल्स को देखते हैं. इन चाइना में पाए जाते थे. बट डैश ईस्टर्न चाइना, बट इन ईस्टर्न चाइना द बैम्बू फॉरेस्ट हैव बीन कट डाउन डैश फार्मिंग. सो द बैम्बू फॉरेस्ट हैव बीन कट डाउन फॉर फार्मिंग. लेकिन फिर क्या होने लगा? ये जो बैम्बू फॉरेस्ट है, जो कि पैंडास का घर है, क्योंकि जो पैंडास है वो बैम्बू फॉरेस्ट में रहते हैं, तो ये जो बैम्बू फॉरेस्ट है ये काटे जाने लगे. वहाँ के लोग इन्हें काटने लगे फॉर फार्मिंग. ओके, फॉर फार्मिंग. नाउ देयर नंबर हैज डिक्रीज. बिकॉज अगर रहने के लिए घर नहीं होगा, खाने के लिए खाना नहीं होगा, तो हाउ वुड इट वोंट बी पॉसिबल फॉर द पैंडास टू लिव देयर. सो दे स्टार्टेड डिक्रीजिंग डे बाय डे. ओके, सो यहाँ नाउ देयर नंबर हैज डिक्रीज, इसीलिए जो पैंडास है वो कम हो गए. अबाउट 99% डैश द जाइंट पैंडास फूड इज बैम्बू. बिकॉज जो जाइंट पैंडास है ये क्या खाते हैं? इनका फेवरेट फूड क्या होता है? बैम्बू. लेकिन बैम्बू ही जब काटा जाने लग गया तो अब ये किस पे फीड करें? वो क्या खाना खाएंगे? इसलिए वो उनके नंबर्स डिक्रीज होने लगे, है ना, मरने लग गए. द जाइंट पैंडास फूड इज बैम्बू एंड 1% So as you all know, the basic food, the essential food for pandas is bamboo. Their favorite food is bamboo. लेकिन जब बैम्बू ही काटा जाने लग गया तो वो किस पे फीड करते? वो क्या खाते? तो एज अ रिजल्ट द नंबर स्टार्टेड डिक्रीजिंग एंड 99% ऑफ देयर फूड इज बैम्बू. वो सबसे ज़्यादा बैम्बू खाना पसंद करते हैं. और जो 1% है, एंड 1% कंसिस्ट डैश ग्रास, रूट्स, प्लांट्स एंड इवन मीट. और जो 1% खाना है, मतलब बहुत स्मॉल जो क्वांटिटी है, उसमें वो ग्रास, रूट्स, प्लांट्स या फिर जो मीट है वो खाते हैं. लेकिन मोस्टली दे फीड ऑन बैम्बू. ओके, सो यहाँ क्या आएगा? ऑफ. इन अ फर्स्ट ब्लैंक वी हैव टू राइट इन सेकेंड अगेन इन थर्ड ऑल्सो इन. नेक्स्ट नंबर 4 blank for, number 5 off and number 6 off. Okay, so students, these are the answers of page number 131. Complete it in your Bravia book, and if you have any query you can call me and ask me. Okay, and now the homework that I have given you, you have to complete it and watch the videos again and again on prepositions, so that you can learn what is preposition and what are the different types of prepositions. Okay, thank you. Study hard. Have a nice day.